हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रेन्स। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज ट्रेन क्रॉसिंग अ पोल दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ negligible length. So the time taken by train to cross the pole is the same as the time taken by rear end of the train to travel the distance which is equal to the length of train. इस पॉइंट को लेंथ ऑफ ट्रेन जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा टू क्रॉस द पोल, एंड व्हाट इज द टाइम? टाइम इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. डिस्टेंस था हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन. सो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द पोल इज लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन. Second concept, train crossing a bridge or platform that is an object of a considerable length. So L is the length of train, B is the length of bridge. So time taken by train to cross the bridge is the same as the time taken by the rear end of the train to travel a distance which is equal to the length of train plus length of bridge. So time is distance divided by speed. Distance is लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस ब्रिज डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्योंकि जो रियर एंड है उसका स्पीड भी होने वाला है स्पीड ऑफ ट्रेन जितना. सो दैट इज टाइम इज L प्लस बी डिवाइडेड बाय S. थर्ड थियोरी कम्स कि द ट्रेन्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. दो ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, इन दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा? ये बिल्कुल सेम होने वाला है. L1 एंड L2 आर द लेंथ ऑफ ट्रेन, और टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा ये जो दो रियर एंड है इनको डिस्टेंस ट्रेवल करना है L1 प्लस L2 जितना, और इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होने वाली है? S1 प्लस S2. सो टाइम इज सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, और दो चीज जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो रिलेटिव स्पीड होगा उनका एडिशन. सो टी इज L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2. और अगर यही ट्रेन सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करे तो कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सेम रहने वाले हैं. रियर एंड को इस फर्स्ट ट्रेन का जो इंजन का पार्ट है उसको ओवरटेक करना है. दैट इज द रियर एंड हैज टू ट्रैवल द डिस्टेंस व्हिच इज इक्वल टू L1 plus L2, and the relative speed will be in the same direction is S1 minus S2. So it's a sum of length of train divided by relative speed. So it's a S1 minus S2. And the last concept is train crossing a man, that is object of negligible length. So again, the rear end has to travel the distance which is equal to the length of train, but now the object is moving. So I have to take the relative speed. So it's a length of train divided by relative speed, which is L divided by ST minus SM, that is speed of train minus speed of man when they are traveling in same direction. और अगर वो opposite direction हुआ तो it's a ST plus SM. This case is also similar to the case where a train crosses a man sitting in another train where the length of the other train does not matter. दूसरे ट्रेन में अगर ये आदमी बैठा होता है तो हमें तो सिर्फ इस मैन को ओवरटेक करना है ना. जो दूसरा ट्रेन है उसका हम लेंथ नहीं गिनेंगे, उसका सिर्फ स्पीड देखेंगे. सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ऑन ट्रेन्स. The first question says, what is the time taken by train 800 meter long to cross an electric pole if the speed of the train is 45 km per hour? So time क्या था हमारा? Length divided by speed. Length यहाँ पर 800 है, speed 45 है, लेकिन आंसर सेकंड्स में है तो इस स्पीड को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करने का तरीका मल्टीप्लाइड बाय 5/18 which comes out to be this is a 2, it's a 9, so 1600 divided by 25, which comes out to be a 64 seconds. Second question, what is the time taken by train 650 meter long traveling at 72 kmph to cross a 750 long platform? So time is nothing but length of train plus length of platform divided by speed of train. 650 plus 750 is 1400 डिवाइडेड बाय 72. अगेन ये किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड मतलब मल्टीप्लाइड बाय 5/18
1, this is a 4, so 1400 divided by 20 is 70 seconds. Third question, how long will a train 250 meter long traveling at 90 kmph to cross a train 200 meter long traveling at 36 kmph in the same direction? So टाइम क्या है, हमेशा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड क्या होंगी, S1 माइनस S2. So it's a 250 plus 200, that's a 450. 90 minus 36 is a 54, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है, कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड, so 5 by 18, it's a 1, 3. 450 divided by 50 is nothing but 30 seconds. Last question, a train crosses two bridges 430 meter long and 550 meter long in 30 seconds and 36 seconds respectively. Find the speed of train. अब इस क्वेश्चन को थोड़ा विजुअलाइज करते हैं और इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है. 430 वाला जो ब्रिज है उसको क्रॉस करने के लिए ट्रेन को लग रहे हैं 30 सेकेंड्स. 550 वाला जो है उसको क्रॉस करने के लिए लग रहे हैं 36 सेकेंड्स. अगर अब हम ध्यान से देखें तो ये जो 430 वाला है वो तो 30 सेकेंड्स में क्रॉस कर लिया है, ऑलरेडी क्वेश्चन ने बोला है. बचावा 120 करने के लिए कितना टाइम लगेगा, यहां तक 30 सेकंड्स में आ गया था, टोटल 36, यानी 120 मीटर उसने किया है 6 सेकंड्स में. अगर ट्रेन 120 मीटर 6 सेकंड्स में कर रही है तो उसका स्पीड कितना हुआ, 120 डिवाइडेड बाय 6 व्हिच इज 20 मीटर पर सेकंड्स.